let us start the second problem from this bit. Calculate the position of center of the shaded area. Now all of you see, my dear students, this is the one figure will be given. So having there is having the now different figure there. Now we see for this. Now from the basic steps we already seen the last bit. Now the first step, given data. So this is the given data is given. Now we have to divide the section first of all. Okay, this is the bigger. That's why we have to take on the first section. This will be having the second part will be there. Now symmetric or unsymmetric, that is based on the your axis, that is x axis and y axis. Just you have to follow that. पता है क्यों निकालते हो? कैलकुलेशन बचता है भाई y. Now उसके बाद में यहाँ पे कहा तो एक्ट होगा. You don't know the exactly position. Now x axis and this is y axis. यहाँ पे you have a centroid line, right? Please see this figure. Symmetric about which axis? Symmetric about which axis? Not both the axis. Not both the axis. First figure you have to see the first figure, right? This is first section y. यहाँ पे इसका mirror image है, dimension and diagram also. Yes, exactly symmetric will be there. यहाँ पे 200 है, यहाँ पे भी 200 होगा. देखो, exactly figure है क्या नहीं? Exactly इसका replicate होना चाहिए, तभी वो symmetric होगा. So symmetric about which axis? ये important है भाई. Symmetric about y axis. So symmetric about y axis रहेगा तो क्या निकलने वाला है डायरेक्टली? क्या निकलने वाला है यहाँ पे? x bar. मैं डायरेक्टली करू शकतो का आता? x bar. What is the x bar now? So this is having the x bar will be there. This is having the x bar will be there. Origin कहाँ पे भी ले लो? यहाँ पे अपन origin लेंगे. This is point O, or you can say the O. O is stand for the. This is the your origin O. You have to take a origin from this one, and we are going to calculate the x bar and y bar value. Due to symmetric, this will be having x bar असेल तर ये भी x bar होगा. So x bar is nothing but the what is x1 equal to x2. Same value रहने वाला है. इसका जो top width है, width जो है bigger. So this ये 400 रहेगा तो ये भी 400 ही होने वाला. So just simply 400 divided by 2. So what is the x bar here? What is the x bar here? So x bar equal to directly 200 mm. So this is your x bar is there. Clear everyone? Because of the due to symmetric about the y axis. Whatever the line of symmetry will be there, that is because of the x bar will be clear. हो गए 2 मार्क तुम्हारा. 2 मार्क हो गए यहाँ पे. अभी next bit, that is we are going to see in this. We are going to calculate the a1 a2. मेरे को बोलो यहाँ पे my dear students, unsymmetric about which axis? Unsymmetric about which axis? X axis. So unsymmetric about x axis. X axis देखो यहाँ पे x axis है. Unsymmetric क्यों है? एक ने बोला था अभी symmetric about the both the axis. Not C here. इसका replicate है क्या यहाँ पे? नहीं है. ये देखो ट्रायंगल है क्या नहीं? ये बेस ट्रायंगल है और ये जो फर्स्ट फिगर है रेक्टेंगुलर है. सो रेक्टेंगुलर भी देखो नहीं है यहाँ पे रेक्टेंगुलर. सो इसकी वजह से अनसिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस. सो एक्स एक्सिस है. यहाँ पे तेरे को क्या निकालना पड़ेगा? y बार का फॉर्मूला क्या है? दो फिगर है बोले तो a1 y1 प्लस a2 y2. बट यहाँ पे प्लस आएगा क्या? नहीं आएगा. क्यों? ये कट आउट सेक्शन है. दिस इज कॉल्ड एज ए कट आउट सेक्शन. कैसा होगा कट आउट सेक्शन? देख लीजिए. यहाँ पे फर्स्ट फिगर जो है तेरा रेक्टेंगुलर वाला है एंड सेकंड फिगर जो है यहाँ से ये माइनस हो चुका है. ये ट्रायंगुलर है क्या नहीं? ट्रायंगुलर वन है. सो यहाँ पे माइनस होगा. इसका जो माइनस करके जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज योर सीजी पॉइंट फॉर दिस सेक्शन. दैट इज द y बार. क्लियर ना? अभी यहाँ से बेस से a1 a2 निकालेंगे. चलो from based on the figure we are going to calculate here a1 and a2. Now a1 is nothing but the rectangular figure b into d. ठीक है? b is nothing but the this is your b and this is your depth d, right? So this is the b into d. Then a1 you have to calculate using the calculator this one, and this a2. Please see the a2. a2 is nothing but the this figure a2 is nothing but the height and this is having the base. यहाँ पे जितना चार्ज है यहाँ पे भी बेस उतना होने वाला है. So what is the formula of the triangle? I already posted on the Telegram channel and I already given to you in the formula set. So that is जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे तुमको मिल जाएगा. प्लीज टेक केयर ऑफ.
राइट। एरिया ट्राइंगल के लिए एरिया क्या है, 1/, बेस इनटू हाइट। सी दिस इज 1/, बेस इनटू हाइट, जस्ट यू हैव टू पुट द बेस इज नथिंग बट 400, हाइट इज नथिंग बट दिस ट्राइंगल, दैट्स इट। बेस कौन सा है, यहाँ पे जो बेस रहने वाला है वही बेस यहाँ पे रहेगा, ये होगा तेरा हाइट। सो दिस इज बेस इनटू हाइट एंड यूजिंग द कैलकुलेटर यू कैन कैलकुलेट। नाउ माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हियर समेशन एरिया में a1 प्लस a2 आएगा क्या, a1 माइनस a2 आएगा, a1 माइनस a2 आएगा, बिकॉज तुम जाके प्लस करोगे, अभी प्लस नहीं करना है। ये ऐसा है क्या फिगर, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं है ना, अंदर दिया हुआ है, सो हो माइनस होगा इस तरफ से। सो यहाँ पे a1 माइनस a2 करो कितना, 2,60,000 क्लियर। सो फ्रॉम यूजिंग कैलकुलेटर यू विल गेट दिस इज 2,60,000 mm square। प्लीज while writing carefully write, जीरो देखो, राइट, इस तरफ से जो कैलकुलेटर में दिया हुआ है वही लिखते जाओ, एक जीरो वहाँ यहाँ हो गया, पूरा आंसर गलत आ जाए, ठीक है। नाउ विल मूव नाउ a1 a2 विल बी और बेस्ड ऑन दिस स्टेप्स विल गो फॉर द नाउ कैलकुलेट द y1 एंड y2 वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। नाउ दिस इंपॉर्टेंट है, देखो अभी y1 देखो y2 देखो। माय डियर स्टूडेंट्स सी y1 कौन है, रेक्टेंगुलर है क्या नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स फॉर द रेक्टेंगुलर फिगर व्हाट इज द y1 will be there from the bottom or top, this will be suppose d, this will be having the d by 2, right। so similarly here d by 2 आएगा, so d by 2 को d by कितना है d, overall depth will be 800, so 800 divided by 2 कितना आता है, it will be having the 400 mm। clear everyone। now this is your y। now what is the y2, y2 is nothing but the based on the triangle। see triangle कैसा है, यहाँ से है ऐसा, so इसका जो बेस फॉर्मूला सेट में दिया हुआ है, प्लीज वॉच, दिस इज हैविंग द बेस, दिस इज हैविंग द एपेक्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए वर्टेक्स, ओके। यहाँ पे ये h रहेगा, ये b रहेगा, सो फ्रॉम द बेस you have to see this will be having the 1/3 of h and from the apex this will be having the 2/3 of h। एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूले भी पूछ सकते हैं, राइट डाउन द फॉर्मूलेज ऑफ सेमी सर्कुलर सेक्शन, क्वार्टर सर्कल सेक्शन, और यू कैन से द सॉलिड हेमिस्फीयर, और यू कैन से द ट्रायंगुलर सेक्शन। इसके फॉर्मूले 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्टली पूछ सकते हो। सो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला यू आल्सो रिक्वायर इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मैकेनिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द सेकेंड ईयर लेवल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दीज फॉर्मूलेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फर्स्ट चैप्टर ही है मॉस और सॉन, सिविल एंड मैकेनिकल बोथ ऑफ यू। Now y2, now what is the y2, y2 is nothing but the, this is nothing but your y2, that's it, 1/2। यहाँ से यहाँ जो होगा ये y2 होगा, so क्या है भाई बोलो, 1/3h, h कितना है रे भाई, h है 300, so this will be having y2 is equal to 100 mm आया, okay 100 mm आया, so just you have to put the value of in this y bar। now y bar कहाँ से है रे भाई, origin से लेंगे, okay at top, right। now y bar is equal to a1 y1, अभी क्या आएगा भाई, माइनस आएगा, माइनस क्यों माइनस आएगा यहाँ पे बताया, a2 y2 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एरिया। प्लीज पुट द एरिया, ये कितना है देखो, a1 3,20,000 माइनस मल्टीप्लीकेशन नहीं y1 400 माइनस a2 60,000 मल्टीप्लाइड बाय y2 100 डिवाइडेड बाय ये होगा 2,60,000। ऑल ऑफ यू प्लीज टेक केयर ऑफ while putting the a1 and y1 values, okay, that is the most important। why we take a minus, the minus because of the based on the this section, right। 1 से फिगर 2 माइनस हो रहा है, ठीक है, ये फिगर 1 मत ले लो बिकॉज जो बड़ा है वो फिगर ले लो, बिकॉज अदरवाइज द आंसर विल बी इन द नेगेटिव, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट एंड कैलकुलेट यूजिंग दिस कैलकुलेटर एंड टेल मी द y बार एट टॉप, दिस इज फ्रॉम एट टॉप, ओके फ्रॉम टॉप, ठीक है, दिस इज फ्रॉम टॉप। हाँ कितना है 469.23 mm, दिस इज योर y टॉप। बॉटम से भी निकाल सकता है, बॉटम के लिए पता है आपको क्या, अभी एग्जैक्टली क्या शो कर रहा है 469.23, ये 800 है,
इसका सेंट्रॉइड कितना आएगा, सिर्फ रेक्टेंगुलर सेक्शन का 400, बट इसका जो फिगर है, इसका फिगर एग्जैक्टली दैट इज नॉट मैच इन द सेंट्रॉइड, दिस विल बी हैविंग गोइंग अपवर्ड, ये कहाँ पे तो आएगा, तो इसका डिस्टेंस जो है ये होगा y बार एंड ये डिस्टेंस जो होगा जरा ये होगा x बार, ओके, यहाँ पे x बार, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ योर सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर, ठीक है। वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड एट द टॉप एंड फ्रॉम द बॉटम, दैट इज फ्रॉम बॉटम, एग्जाम में जो पूछेंगे वो करना है आपने। एट द y bar, at the y bar at the bottom, this is at the top, we have to assume that is origin from this side. From now we have to calculate the bottom. Bottom से कहाँ होगा, overall depth भाई, overall depth minus y bar at top, जो ये था y bar top, इसको origin मैंने o लिया इसलिए o लिखा। So overall depth कितना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना 800 है, so 800 minus 469.23. So please tell me this one. 330.77. 330.77. This is mm from the. These are the three concepts will be there. सही है? For more problems, if you want, then you will join the Telegram channel. You will take from the practice problems, right? Okay. If any doubt, I have given the number to you. Please contact me. Okay. I will send the solution also to you. Okay. So good day. Have a nice day. Bye bye. This is the problem is there. They are going to ask here position of centroid from the bottom left corner B. They are given the figure to you. They are saying the bottom from left here. They are going to ask. ठीक है? We are calculate today. इसमें क्या चेंज है? प्रीवियस वीडियो में जो आप देखे थे उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री दिया, राइट? दैट इज अबाउट द एक्स एक्सिस देखे, उसमें से एक सिमेट्रिक था और अनसिमेट्रिक था, बट यहाँ पे देखो, just let's check with the help of the mark the axis and whether this figure is symmetric or unsymmetrical, right? Just check. Now first of all क्या दिया हुआ है आपने, एक रिटेनिंग वॉल दिया हुआ है, इसको आपने first step, that is the given data, they are given the dimensions, you have to mark the sections and divide the part, that's it. Now part the divide, part करो इसको यहाँ से, देख तू यहाँ से भी यहाँ कर सकता है, but this is not a standardized figure, you have to making the standardized figure like rectangular, square, circular, this a figure आना चाहिए, right? So this will be having, I will assume 1 and this will be having the figure number 2. Just we have to make a two separate parts, right? Rectangular हो गया और triangular आ गया, इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके साथ है, यहाँ पे ओरिजिन B से निकालना है, x बार हो गया, we don't know the where the exactly position will be at, right? ये सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल है, कैसा चेक करेगा भाई, मार्क द सेक्शन, दिस इज x एक्सिस and this will be the having the something regarding y axis. I don't know कि कहाँ पे सेंट्रोइड एक्ट होने वाला है, मेरे को अभी पता नहीं है, कब पता चलेगा, जब तू x बार और y बार निकालेगा। x बार क्या रहता है, दिस इज अ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम, दिस इज हैविंग द योर y बार एंड व्हाट इज द x बार, दिस विल बी हैविंग द योर x बार। आई डोंट नो द वेयर द CG, सॉरी सेंट्रोइड वेयर द एक्ट, आई डोंट नो, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोइड, मेरे को पता नहीं है कहाँ पे एक्ट होना है, कैलकुलेशन करने के बाद एग्जैक्टली फिगर आता है, ठीक है, तब तक अपन मान लेंगे यहाँ पे किधर तो एक्ट होगा। सो जस्ट वी हैव टू चेकिंग हियर सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, प्लीज लेट मी नो अबाउट सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक। वाई एक्सिस ले लो, इसका रेप्लिकेट है क्या, नहीं है, बोले तो ये अनसिमेट्रिक है। इसके बाद में एक्स एक्सिस लो, इसका रेप्लिकेट है क्या, नहीं है, सो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिकल सेक्शन, दिस होल एक्सिस विल बी हैविंग द अनसिमेट्रिकल सेक्शन। सो अनसिमेट्रिकल सेक्शन जब भी आएगा तब काम बढ़ जाएगा, ये ऐसे अपन फर्स्ट वीडियो में सुनिए, राइट? सिमेट्रिकल रहेगा तो कैलकुलेशन इजी होगा, अनसिमेट्रिकल रहेगा तो कैलकुलेशन, दैट इज प्रॉब्लम सिलेक्शन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ से प्रॉब्लम की लेवल बढ़ सकती है और यू कैन से द दिस विल बी हैविंग द ईयर द कैलकुलेशन पार्ट विल बी इंक्रीजिंग बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द a1 a2 तो निकालता है, x1 में निकालना पड़ेगा, y1 निकालना पड़ेगा, x2 y2 निकालना पड़ेगा, because there are the two figures will be there. My dear students, in this case we will now focusing on the how to calculate the x1 x2 also and y1 y2 also. For please watch till end this video, you will get lot of knowledge regarding of this type of the problems. You have to going to calculate here x1 and x2, y1 and y2 because of the unsymmetrical figure is there. Now let's move. The first, that is calculate the a1. What is the a1, my dear students? a1 is nothing but a simply rectangular figure is there already with help of the geometrical problems. Okay, ये अच्छी तरह से मार्क करेंगे. Okay, exactly दिखना चाहिए. See,
दिस इज योर हैविंग द विड्थ बी, यहाँ पे 0.8 रहेगा तो यहाँ भी 0.8 रहेगा और ए डेप्थ जो आएगा 5.2 आएगा. सो b into d, व्हाट इज द a1 फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन? b into d. सो b क्या है भाई? 0.8. सिंपली मल्टीप्लिकेशन बाय द 5.2. ओके, प्लीज टेल मी. 4.16 बोलो जल्दी मीटर स्क्वायर. नाउ what is the a2 now? a2 is nothing but the for the triangular. See what is the triangular? 1 upon base into height. base क्या है भाई? base क्या है? base is nothing but ये देखो हाँ distance, ये distance निकाला. so what is this distance? 3.2. 3.2 minus 0.8. 3.2 minus 0.8 कितना आता है? 3.2 minus 0.8 कितना आएगा? 2.4 मीटर. सो दिस इज हैविंग द 2.4 इज द बेस. क्लियर एवरीवन फ्रॉम दिस पॉइंट? 2.4 दिस इज द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. हाइट कितना है? इसका सेम हाइट है 5.2. प्लीज कैलकुलेट. 6.84 कितना है? 6.24 मीटर स्क्वायर. मेक नाउ समेशन एरिया. समेशन एरिया अब एडिशन होगा क्या सब्ट्रैक्शन होगा? एडिशन. दिस इज नॉट अ कटआउट सेक्शन, दिस विल बी द एडिशन. दैट इज अ टू डिफरेंट फिगर्स आर देयर. सो दिस विल बी द एडिशन. a1 plus a2 करो. a1 plus a2 10.4 कितना? 10.4 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज हैविंग द रिगार्डिंग द a1 and a2. क्लियर एवरीवन? नाउ ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू गो फॉर नाउ x bar calculation, y bar calculation. So before going to start, that is we have to calculate first of all the y1, y2. Origin कहाँ लिया है? वहाँ पे हाथ रख लीजिए भाई. So यहाँ पे origin है ये B point से. So first figure, see my dear student, this first figure का centroid क्या आएगा? First figure का centroid आएगा, देखो इसका centroid यहाँ से, इसका centroid यहाँ से किधर तो centroid इसका आएगा, ये होगा तेरा y1. Okay, this is your y1. So what is the y1? The y1 is nothing but the, this is from the figure from the bottom. See ये rectangular section है. rectangular section का height कितना है भाई? 5.2 divided by just 2. 2.6 divided by 2 कितना आएगा? 2.6 मीटर. Now what is the y2? y2, see there, this is the y2. Now I will write over here this triangle, two part, this two part. See this is having your y2. Now this will be suppose your h, this is your base. This is y2 is nothing but the from top. फॉर्मूले में लिख के दिया होगा 2/3 of h रहेगा और ये आएगा 1/3 of h आएगा. So 1/3 of h, 1/3 of h. h कितना है भाई? 1/3 of h. h क्या है? 5.2. Please tell me this one. 1.73. So y1 y2 हो जाए. उसके बाद now y1 y2 होने के बाद आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो क्या? That will be having the y bar, right? So before going to putting the values, we will go for the now x1, x2 also. Now x1, x2. Now this is the new. Now for you, how to calculate x1 and x2? Please listen carefully. How to calculate x1? My dear students, you know the very well. The x1 is nothing but the for the first figure, rectangular figure देख लीजिए. इस figure का centroid x is nothing but the horizontal distance from the origin. This is the origin. तो origin से यहाँ पे ये जो आएगा ये y axis, ये x axis आएगा. यहाँ पे कहाँ पे खड़ा रहना है? यहाँ पे खड़ा रहना है. जब y दिखते रहेगा यहाँ पे खड़ा रहना है. इससे x बार आएगा. So x1. So this will be having the x1 point from the first figure का centroid. फर्स्ट फिगर का सेंट्रॉइड उसका सेंटर लीजिए भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से, दैट इज द x1. y1 क्या था? वर्टिकल था. x1 उस फिगर का लीजिए जो फर्स्ट फिगर. इसका फिगर का जो विड्थ है इसका विड्थ डिवाइड बाय 2 कीजिए. 0.8 डिवाइड बाय 2 इज नथिंग बट द 0.4 मीटर. नाउ दिस इज द 2 स्टार आई विल गिव because lot of students are mistake for the x2. Please see that. Now x2 समझ लीजिए. ये x2 का फिगर कहाँ पे? यहाँ पे आया होगा. So this is having the your x2. So how to calculate the x2? See ये फिगर है. जो एरिया है भाई सुन ले, जो एरिया है अभी देख इसका फिगर मैं फिर से निकालता हूँ. ठीक है, ये देख एक एक्सिस पे बैठता हूँ, ये y है. ओके, यहाँ पे कौन है? ये ऐसा फिगर है और ये इस तरफ से देख इसका मैं पूरा देखा. ये बेस है और ये हाइट रहेगा. क्या मेरे को बोल भाई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है?
इस फिगर का डिस्टेंस कितना है, इधर से इधर तक कितना है, फ्रॉम दिस वन, दिस इज बेस एंड दिस इज एपेक्स, फ्रॉम दिस टू दिस विल बी हैविंग 1/3 ऑफ बेस, मैं बेस के लिए लिख रहा हूँ ना हाइट के लिए, और ये होगा 2/3 ऑफ बेस. Okay, now I want to calculate this distance. This distance is having the x2. Now how to calculate x2? This distance मेरे को पता है, ये होगा डिस्टेंस तेरा 0.8, राइट. 0.8 पहला लिख लीजिए प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस. रिमेनिंग डिस्टेंस क्या है, 1/3 ऑफ बेस. क्लियर एवरीवन. ये आएगा फर्स्ट ट्राइंगल का, सॉरी फर्स्ट रेक्टेंगुलर का विड्थ प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस, ये छोटा वाला डिस्टेंस कितना है, 1/3. कहाँ से, बी से. मेरे को कैलकुलेट कहाँ से करना है, एक्स बार, दैट इज फ्रॉम द बी पॉइंट. दिस इज द बी पॉइंट से ही ले लो भाई. सो डायरेक्टली 1/3 ऑफ बी. सो 0.8 प्लस 1/3 ऑफ बी. बी कितना है रे, 2.4. वी ऑलरेडी कैलकुलेट दैट. 2.4. नाउ x2 कितना आएगा, 1.6. आराम से करो. पहले 2.4 डिवाइड बाई 3 प्लस 0.8 करो, कितना आया, जल्दी मत करो. 2.4 divided by 3 plus 0.8, 1.6. 1.6 meter. Clear everyone? This is one of the most important will be there. After that you will get the final values. You can easily calculate the based on the x bar. Now what is the x bar here? X bar is nothing but the a1 x1 plus a2 x2 divided by a1 minus a2. Sorry, a1 plus a2. That is summation area. Now y bar equal to a1 y1 plus a2 y2 divided by summation area. My dear students, all the values you have to put in this particular equation, and this equation you will get the x bar and y bar. Please take care of that. You have to put the values and make using the calculator. You have to calculate the x bar and y bar. Okay, this is from the origin B. You have to take from the origin B. राइट. सपोज ओरिजिन ए से पूछ लिया तो क्या करेगा, ओरिजिन ए से पूछ लिया तो एक्स बार की जो वैल्यू आएगी, ओवरऑल डिस्टेंस माइनस इतना माइनस करो, वो वाई बार आ जाएगा. एक्स बार पूछ लिया तो यहाँ से पूछा तो क्या करना, यहाँ से पूछा तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू तेरा एक्स बार रहेगा. एक्स बार से ये टोटल वैल्यू से ये टोटल वैल्यू माइनस कर, यहाँ से सी पॉइंट से भी आ सकता है. ठीक है, कहाँ से पूछ लिया वहाँ से लिखना. ठीक है. So please tell me the x bar value. See, after using the calculation, you will get these values. You have to just put all the values. Okay. X bar is equal to 1.12 and y bar is equal to 2.07. Okay. This what x bar is equal to 1.12. Where will we show? So see, this is from B. They are going to asking the from the corner B. जहाँ से पूछ लिया वहाँ से निकालो. Okay. So this will be having the your x bar value, that is 1.1. So 1.1 बोले तो एक यहाँ पे act होगा क्या? We have to assume that, but actually this is not like that figure. This figure will be like, see, this figure will be like, okay. यहाँ से ऐसा है. Okay. अभी है काट देंगे. So ये कितना था? 0.8 था ना, और ये नीचे वाला कितना था? 3.2 था, और ये 5.2. अभी देखो कैसा मार्क किया जाता है, x bar और y bar. After the calculation, we will just add it on that from B से. Okay, from B से. Okay, 1.12 कहाँ पे आएगा, देखो ये 0.8 है, वहाँ 1.12 यहाँ कुछ तो आएगा. Okay, यहाँ से ये होगा तेरा x bar. y bar कितना है, 2.07. 2.07 कहाँ से, बेस से. B का पॉइंट में बेस बोला तो यहाँ बेस पे आएगा नहीं. ओके, सो यहाँ से कितना है, 2.07. 5.2 है. 2.07 approximately you have to mark 9. ठीक है. So this will be having the your y. ये 5.2 डिवाइड बाई 2 करो, 2.6 समथिंग आएगा. 2.6 यहाँ पे कुछ इधर तो आएगा. ओके. Okay, this will be y bar. What is the y bar? Y bar is nothing but 2.07. So see, this will be there. You are having the 2.7. क्या लगा? So y bar is nothing but 2.7. 2.07 is nothing but it. From the bottom, this will be having your y bar. That's it. And this is called as your centimeter. Clear everyone? So this is the regarding your second problem we have covered in that x bar as well as the y bar. Okay. So this problem is most important problem while doing your MSBT examination point of view. Okay. If you like this video, then you will subscribe, घंटा बजाओ, ठीक है, और शेयर करो. ठीक है. चलो बाय.